स्टूडेंट्स वी वर डूइंग परमुटेशन ग्रुप्स। लास्ट लेक्चर में हमने इवन एंड ऑड परमुटेशंस को डिफाइन किया। इस लेक्चर में हम अल्टरनेटिंग ग्रुप विच इज़ बेस्ड ऑन इवन परमुटेशंस स्टडी करेंगे। इफ़ an denotes set of all even permutations of degree n, then an is a group called alternating group or with respect to मल्टीप्लिकेशन। लास्ट टाइम हमने किया कि अगर आपके पास परमुटेशंस हैं n फैक्टोरियल तो उनमें से एग्जैक्टली हाफ जो होंगी वो इवन होंगी और हाफ ऑड होंगी, मींस n फैक्टोरियल बाय 2 इवन होंगी और n फैक्टोरियल बाय 2 ही ऑड होंगी। तो अगर हम an एक सेट ले लें उन सभी इवन परमुटेशंस ऑफ डिग्री n का, देन वी कॉल दैट an एज अल्टरनेटिंग ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू multiplication. So let us now prove that the set of an of all even permutations of degree n is group with respect to multiplication. So आपके पास an में है क्या? सेट में even permutations हैं of degree n। तो आपके पास permutations पड़ी हैं, means 1 1 and on to functions f। let f closure, सबसे पहले closure law, let f and g be the two permutations from an, so therefore f भी आपके पास even permutation होगी और g भी even permutation। हमने प्रॉपर्टीज की थी लास्ट लेक्चर में कि अगर आपके पास दो इवन परमुटेशंस हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक इवन परमुटेशन होगी। सो एज प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशंस इज ऑल्सो an even permutation, therefore if g belongs to an, then f into g, again an even permutation, belongs to group of, yeah, you can say set of even permutation. So an satisfies closure law. Next is associativity. अब multiplication of permutation is always associative, हमने किया था। permutation is a group, all permutations of degree n forms a group with respect to कौन सा, composition of mapping। so यहाँ पे भी आपके पास जो आपके पास multiplication है composition ही है वो एक तरह से। multiplication of permutation is associative, so therefore an satisfies associative law. Next is existence of identity. Identity is always an even permutation, so identity belongs to an, set of all even permutations, so identity exists. Next is existence of inverse. इनवर्स ऑफ, हमने ये भी किया था, इनवर्स ऑफ इवन परमुटेशन इज ऑलवेज एन इवन परमुटेशन एंड इनवर्स ऑफ ऑड परमुटेशन इज अगेन एन ऑड परमुटेशन। सो एज इनवर्स ऑफ इवन परमुटेशन इज ऑलवेज एन इवन परमुटेशन, देयरफॉर फॉर ईच f belongs to an there exists f inverse which is again an even permutation, therefore belongs to an, such that f into f inverse is equal to f inverse into f, which is equal to identity, so therefore inverse exists. So an is n group is an alternating group with order कितना होगा इसका, अगर आपके permutation of degree n है तो exactly n factorial by 2 permutations even होती हैं और n factorial by 2 permutations odd होती हैं। so the group order of the group is n factorial by 2. Next remark, very important remark, set of all odd permutation is not a group with respect to multiplication. So आपके पास set अगर हम लें odd permutations का वो group नहीं होगा because closure law is not satisfied. अभी हमने properties में किया कि आपके पास product of two odd permutation is again an even permutation. अगर आपके पास दो ऑड परमुटेशंस लो आप और उनको प्रोडक्ट लगाओ तो आपको ऑड परमुटेशन नहीं मिलती, आपको इवन परमुटेशन मिलती है। तो क्लोजर लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड इन केस ऑफ ऑड परमुटेशंस। सो सेट ऑफ ऑल ऑड परमुटेशन इज नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट इज शो दैट फोर परमुटेशंस आइडेंटिटी ABCD on 4 symbol ABCD form an abelian, finite abelian group with respect to permutation multiplication. So let us define F1 as identity, F2 as AB
F3 as CD and F4 as AB and CD. So these are permutations. Length of cycle is of length 2 और ये product of transposition है F4. So let us consider these are all even permutation. ये भी even है. Sorry, this is AN, F1, F2, F3, F4. Clear? So आपके पास हमने प्रूफ करना है these are the 4 permutations, they form finite abelian group. Let this set be taken as AN. Clear? So हमने इनको क्या प्रूफ करना है? This is a finite abelian group. Finite abelian group में सबसे पहले we will prove that this is a group. तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम F2 इंटू F2 कैलकुलेट अगर करते हैं तो दैट विल बिकम आइडेंटिटी. सो अगेन अगर हम कंपोज करें F2 विद F2 तो आपको फिर से एक आइडेंटिटी. पहले हम क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करवाएंगे कि अगर हम F2 को F1 से मल्टीप्लाई करें, F2 को F3 से करें, F2 को F4 से करें तो हमें फिर से इनमें से ही कोई परमुटेशन मिल जाए. सो अगर हम F2 को F3 से कंपोज करते हैं वी विल गेट F4. अगर आप F2 को F4 से कंपोज करते हो यू विल गेट F3. और अगर आप F3 को F2 से करते हो अगेन यू विल गेट F4 एंड F3 इंटू F3 आइडेंटिटी. F3 इंटू F4 इज F2, F4 इंटू F2 इज F3 एंड F4 इंटू F3 इज F2, F4 इंटू F4 इज अगेन आइडेंटिटी. ये आपने करना कैसे है? कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स आपको आती हैं. अगर मुझे F2 इंटू F2 करना है सो पहले आपके पास F2 इंटू F2 आप लिखोगे कैसे? इसको सेट ऑफ परमुटेशंस आप बना लो. A B B A गोज टू B गोज टू A और C और D क्या है? अनचेंज्ड. इसी तरह A गोज टू B गोज टू A, C एंड D आर अनचेंज्ड. अब देखो A गोज टू B और B गोज टू A. सो अल्टीमेटली A गोज टू A. Next is B goes to A and A goes to B. So ultimately B goes to B. C goes to C, C goes to C and D goes to D. So this is identity permutation. Next अगर आप देखो पहले F2 into F3 करना है. So पहले F2 लिखो AB. A goes to B, B goes to A. C D unchanged. यहाँ पे देखो C goes to D and D goes to C. So AB unchanged, C goes to D and D goes to C. अब इसको परम्यूट करो. सो अब आप कंपोज करोगे तो A गोज टू A और यहाँ पे A गोज टू B. तो अल्टीमेटली A इज गोइंग टू B. B गोज टू A और B गोज टू B एंड B गोज टू A. सो B इज गोइंग टू A. C गोज टू D एंड D गोज टू D. सो इट इज C गोज टू D. D गोज टू C, C गोज टू C. सो D गोज टू C. सो A B पे B A पे. सो इट इज फर्स्ट. नेक्स्ट इज C D पे D C पे. सो दिस इज सेकेंड. सो इस तरह से आपने सारी कंपोजिशंस को निकाल लेना है. तो आप देखोगे कि सारे जो हैं इसी ग्रुप में ही है. AN जो आपने ग्रुप दिया है नाम उसी के अंदर सारे आ गई हैं. सो आप कंपोज यहाँ पे कंपोजिशन टेबल बनाएं या मल्टीप्लाई अगर F1 को F1 से करोगे यू विल गेट द सेम मैपिंग दैट इज F1. F1 को F2 से कर रहे हो यू विल गेट F2. F1 को F3 से कर रहे हो यू विल गेट F3. F1 को F4 से कर रहे हो यू विल गेट F4 बिकॉज F1 इज गिवन टू बी आइडेंटिटी मैप. तो जब भी आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द सेम. सो दिस इज सेम. सो आइडेंटिटी एग्जिस्ट. ग्रुप आपने ग्रुप बनाना है पहले. उसके बाद आपने कंपोजिशन भी देख ली. कंपोज जब भी आप किसी एक को दूसरे के साथ कंपोज करते हो जो एलिमेंट्स हैं वो सारे इसी ग्रुप में जा रहे हैं. इसके बाहर कोई भी मैपिंग नहीं आ रही है. सो क्लोजर लॉ इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. आइडेंटिटी आपने कर दिया है. मैपिंग एसोसिएटिविटी इज ऑल्सो देयर. सो एसोसिएटिव मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी F1 इज आइडेंटिटी ऑफ AN. अब उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. सो F1 का इनवर्स तो F1 है. अब देखो यहाँ पे कंपोजिशन टेबल से आप F2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको आइडेंटिटी मिल रही है F1. सो F2 को F2 से करोगे. F3 को किससे कर रहे हो? F3 से. F4 को कर रहे हो F4 से. तो आपके पास हमेशा क्या आ रहा है? F1. सो आपके पास जो इनवर्सेस हैं वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. F इनवर्स का F1, F2 इनवर्स इज F2, F3 इनवर्स इज F3, F4 इनवर्स इज F4. ऑल्सो कंपोजिशन इज कम्यूटेटिव. सो कम्यूटेटिव तो होगी क्योंकि आपने किया हुआ है कि अगर आपके पास जो साइकिल्स हैं वो डिसजॉइंट होते हैं
तो आप जब भी एफ सर्कल जी या जी सर्कल एफ करते हो तो आपको जो कंपोजिशन है दैट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। तो अगर आप इसको देखो F2 और F3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो दिस इज कम्यूटेटिव। F2 और F4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दिस इज कम्यूटेटिव। और आप इनको अपने आप ही अगर आप F3 और F4 को करो तो दिस इज अगेन कम्यूटेटिव। आप इसे देखना करके ये हमेशा क्या रहेंगे, कम्यूटेटिव रहेंगे। सो अब आप देखो यहाँ पे मैंने F2 इंटू F2 कंप्यूट किया था, F3 इंटू F3 भी कंप्यूट किया था, आइडेंटिटी आ रहा था। F4 इंटू F4 भी कंप्यूट किया था, दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी। सो आपके पास F4 का इन्वर्स F4 है, F2 का इन्वर्स F2 है, F1 का इन्वर्स F1 है और F3 का इन्वर्स F3 है। और जो ये मैंने लिखा हुआ है फिफ्थ पॉइंट, कंपोजिशन इज कम्यूटेटिव, ये भी आपको करके देखना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। सो द फाइनाइट अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज द ग्रुप गिवन बाय ऑर्डर 4 इज ऑलवेज अबिलियन ग्रुप। अब यहाँ पे जो AN मैंने यहाँ पे सिंबल लिया है, आप इसको अल्टरनेटिंग ग्रुप से कंफ्यूज मत करना कि AN जो है वो अल्टरनेटिंग ग्रुप है। दिस AN इज एनी ग्रुप, ठीक है, जिसको आपने क्या प्रूव किया है, अबिलियन प्रूव किया है। So next question is find the center of permutation group S3। S3 ग्रुप का हमने परमुटेशन ग्रुप के एलिमेंट्स हमने पहले भी लिखे थे। S3 में 6 परमुटेशंस हैं, दिस इज 6 परमुटेशन गिवन ऑन S3। अब हमने इसका सेंटर निकालना है। सेंटर मीन्स वो एलिमेंट जो हर एलिमेंट से कम्यूट कर रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले दिस इज आइडेंटिटी मैप, दिस ऑलवेज कम्यूट विद एवरीवन, एवरी परमुटेशन के साथ ये कम्यूट करेगा। सो अगर आप I इंटू एफ निकालोगे यू विल गेट अगेन F, ठीक है। सो आइडेंटिटी मैप बिलोंग्स टू Z3। उसके बाद अगर आप देखो कोई भी दो परमुटेशंस ABC, नेक्स्ट उठा लो ABC, दिस ABC ACB एंड ABC BCA BAC, इन दोनों को अगर आप कंप्यूट कर रहे हो सो यू विल गेट दिस ABC ACB ABC BCA BAC। इनको कंप्यूट किया तो आपके पास ये आ गया, A गोज टू B, B गोज टू C, सो A इज गोइंग टू C, B गोज टू A गोज टू A, सो B इज गोइंग टू A, C goes to C is going to B, so C is going to B। so this is first। second, अब रिवर्स, इसको इधर कर लो, इस वाली को इधर ले आओ और इस वाली को इधर ले आओ। so it is ABC BAC into ABC ACB, so A goes to A goes to B, so A is going to B, B goes to C goes to C, so B going to C going to B is going to A, so C is going to A। अगर आप देखो तो ये दोनों कम्यूट नहीं कर रहे हैं, दिस इंटू दिस इज नॉट इक्वल टू दिस इंटू दिस, सो दिस इज नॉट इक्वल। सो ये तो आपके पास दोनों में से कोई भी सेंटर में नहीं जाएगा, सो दोनों में से कोई भी सेंटर में नहीं है। अब अगर आप इसको दूसरी के साथ कम्यूट करो तो ये भी नॉन कम्यूटेटिव होंगे। तो सिमिलरली यू कैन शो दैट दे आर ऑल्सो नॉट इन सेंटर। सो सेंटर में केवल क्या है, आइडेंटिटी। सो ये अब आपको करके देखना पड़ेगा। सेंटर में केवल वही एलिमेंट होगा जो हर एक एलिमेंट के साथ, S3 के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। तो आप एक को भी करके देख लो, अगर उसके साथ ही कम्यूट नहीं कर रहा तो दूसरों के साथ ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर वो सेंटर में है तो वो सबके साथ कम्यूट करना चाहिए। तो इसको उठा लो, परमुटेशन को उठा लो, इसके साथ करके देख लो। तो अगर ये दोनों आपस में नहीं इक्वल आते तो ना तो ये सेंटर में जाएगा ना ये सेंटर में जाएगा। इसको उठा लो, इसको इसके साथ करके देख लो, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते ना ये सेंटर में, वो तो पहले ही सेंटर में नहीं है, ठीक है। सो आपके पास कोई भी एलिमेंट कोई भी परमुटेशन सेंटर में नहीं होती। S3 की केवल एक ही परमुटेशन सेंटर में होगी, दैट इज ओनली आइडेंटिटी मैपिंग। नेक्स्ट इज राइट ऑल परमुटेशंस ऑन S1 2 3 4, लिस्ट इवन एंड ऑड परमुटेशन। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करने को कहा था कि आपने S के ऊपर अगर 4 एलिमेंट हैं तो आपके पास 24 परमुटेशंस होंगी।
पहले तो वो 24 परमुटेशंस आपने लिखनी है, ठीक है। आई हैव रिटन दीज ऑल 24 परमुटेशंस। सो पहले तो आपने वो सारी परमुटेशंस लिखनी है, फिर उनमें से आपने इवन परमुटेशन कैसे देखनी है, अब साइकिल्स बना लेने हैं। अब साइकिल्स, अब ये जैसे साइकिल ऑफ लेंथ 3 है तो परमुटेशंस कितनी कैसे लिखोगे, 2 परमुटेशंस मिलेंगे, इसमें 2 ट्रांसपोजिशन मिलेगी। अगर साइकिल ऑफ लेंथ n है तो उसमें n-1 परमुटेशन होती है। तो अगर साइकिल ऑफ लेंथ 3 है तो इसमें कितनी परमुटेशन हुई, 2। सो दिस इज इवन परमुटेशन। अब यहाँ पे देखो साइकिल ऑफ लेंथ 3 है तो कितनी ट्रांसपोजिशंस हुई, 2 ट्रांसपोजिशंस, ठीक है। 2 ट्रांसपोजिशन कैसे, 1 2 1 3, तो 2 ट्रांसपोजिशंस हो गई। ट्रांसपोजिशन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है तो इवन परमुटेशंस। साइकिल ऑफ लेंथ 3 अगेन इवन परमुटेशन, साइकिल ऑफ लेंथ 3 लेंथ 3, तो जितनी भी लेंथ 3 की परमुटेशंस हैं वो सारी। अब यहाँ पे 2 ट्रांसपोजिशन है, दिस इज even, this is again even, this is again even. Next is very important theorem which is Cayley theorem. So first of all statement of theorem, statement भी आपने learn करनी है। statement is every group is isomorphic to permutation group। कोई भी ग्रुप है उसको हम किसके आइसोमॉर्फिक कर सकते हैं, परमुटेशन ग्रुप के। सो लेट अस नाउ डिफाइन अ परमुटेशन ग्रुप। सबसे पहले एक ग्रुप फिर परमुटेशन ग्रुप। सो लेट अस डिफाइन अ ग्रुप G with respect to multiplication such that if two elements A and X belongs to G, then by closure property A into X also belongs to G. Next is let us consider a function fa from G to G such that f of ax is equal to ax for all x belongs to G. अगर हम इस f of a को 1 और ऑन टू मैपिंग शो कर दें तो ये परमुटेशन बन जाएगा इस ग्रुप G के ऊपर। क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, परमुटेशंस के सेट को, जो सेट आपके पास आ जाएगा परमुटेशंस का, उसको हम प्रूव कर देंगे कि वो एक परमुटेशन ग्रुप बना रहा है। और जब वो परमुटेशन ग्रुप बना रहा है और एक ग्रुप G है, हम उन दोनों को आइसोमॉर्फिक प्रूव करेंगे। सो सबसे पहले हम एक परमुटेशन फॉर्म करेंगे ग्रुप G पर। सो ये हमने फंक्शन डिफाइन किया है, इसको हम अब इसको हम परमुटेशन प्रूव करेंगे। मीन्स हम fa को 1 और ऑन टू फंक्शन प्रूव करेंगे। सो f इज 1 फंक्शन। Let us take f of ax is equal to f of ay where x and y belongs to group G. So f of a, अब f of ax क्या है, ax, और f of ay भी क्या आएगा, ay. So ax is equal to ay. Multiplying with a inverse because a belongs to G where G is a group. So a inverse भी exist करेगा. So a inverse से अगर मैं इसको multiply करती हूँ you will get x is equal to y. Starting हमने कहाँ से की थी, f of a x is equal to f of a y and we will get x is equal to y. So we have f of a is 1. Now f of a is onto. f of a onto के लिए let us take y from this G, y from here, and we have to for this y we have to find some x, at least one x here in G such that f of a x is equal to y. So देखो क्या ये exist करता है G में. So let y belongs to G, we have to find at least one x, or you can say some x belongs to G such that f of a x is equal to y. f of a x क्या है, ax, किसके equal है, y के. So we have to find x. So multiply with a inverse both sides because a inverse exists in G, a belongs to G and G is a group. So a inverse y. अब a inverse G में है, y भी G में है, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए इनवर्स और y भी कहाँ का एलिमेंट है, G का. तो हमें x मिल गया विच इज इक्वल टू ए इनवर्स विच एग्जिस्ट इन G. तो हर y के लिए एक x जरूर एग्जिस्ट करेगा. सो फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट x विच इज इक्वल टू ए इनवर्स y बिलोंग्स टू G सच दैट f ऑफ a ऑफ x. अब x कितना है, a इनवर्स y. अब किसके इक्वल है, a ऑफ a इनवर्स y विच इज इक्वल टू y. So this implies f of a is onto. अब f of a 1 आ गया, f of a onto आ गया, तो f of a क्या हुई, एक परमुटेशन हुई G के ऊपर. So this implies f of a is permutation.
अभी तक हमने क्या किया, एक ग्रुप लिया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, उसके ऊपर एक मैपिंग डिफाइन की एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, और हमने उस मैपिंग एफ ऑफ ए को परमुटेशन प्रूफ कर दिया ग्रुप जी के ऊपर, ऑन ग्रुप जी. नाउ वी विल प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ एफ ऑफ ए will form a group. That group is G dash. So let us consider a group G dash, a set G dash. अभी इसको हमने ग्रुप प्रूव करना है. Let us consider set G dash which contains all permutations f of a where a belongs to G such that f of a is permutation on group G. So we will prove that G dash is a group. और जब G dash ग्रुप प्रूव हो जाएगा तो हम एक मैप डिफाइन करेंगे फ्रॉम G टू G डैश, और उस मैप को हम प्रूव कर देंगे आइसोमॉर्फिक. आइसोमॉर्फिक मीन्स 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म. उसके बाद हम लिख देंगे एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप. सो ये हम करने वाले हैं. सो ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, लेट अस टेक टू परमुटेशंस एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी बिलोंग्स टू डी डैश. देयरफॉर एफ ऑफ ए एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी. एफ ऑफ बी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी. सो लेट अस नाउ कैलकुलेट एफ ऑफ ए. अब आपने ये प्रूव करना है कि आपके पास जी डैश इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. सो व्हाट इज एफ ऑफ ए into b times x. So this is equal to f of bx. f of bx किसके इक्वल हो जाएगा, this is b into x. अब आपके पास bx आ गया, bx पे अब आप लगाओगे f of a. So आपके पास क्या आ जाएगा, something is missing here. इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको हम लिखेंगे, यहाँ मैं करके दिखा रही हूँ, f of a f of b टाइम्स एक्स. सो पहले आप एफ ऑफ बी एक्स लगाओगे तो क्या आ जाएगा, बी एक्स. सो वो किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे, एफ ऑफ ए इंटू बी एक्स. अब बी जो है वो भी जी में बिलोंग करता है, एक्स भी जी का एलिमेंट है, तो एफ ऑफ ए ऑफ बी एक्स क्या आ जाएगा, ए बी एक्स. सो दिस इज ए बी एक्स, और ए बी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ ए बी एक्स के इक्वल. अब आप कैलकुलेट करो. सो आपके पास एफ ऑफ ए बी इंटू एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ ए बी एक्स के इक्वल. सो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी. अब क्या एफ ऑफ ए बी एक्स जो आपके पास आया है, क्या वो ग्रुप जी का एलिमेंट है, यस, बिकॉज ए और बी जी में है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ए बी जी में जाएगा. सो इट बिलोंग्स टू जी. सिंस ए बी बिलोंग्स टू जी, देयरफॉर एफ ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जी डैश. So fa into fb belongs to g dash. So g dash is closed with respect to multiplication. Next is associative law. Associative में let us take 3 permutations fa, fb, fc which belongs to g dash where a b c belongs to g. So जैसे हमने fa into fb पे एक्स पे कैलकुलेट किया था, उसी तरह एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ सी ऑफ एक्स, पहले हम इस पे ले लेते हैं एक्स. सो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी सी एक्स. क्लियर. तो अब आप इसके ऊपर एफ ऑफ ए ले लो तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी सी एक्स क्या आएगा, बी सी इंटू एक्स. अब ए कैलकुलेट करोगे तो ए बी एक्स. उसके बाद इसी तरह एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी एफ सी एक्स, पहले एफ सी एक्स पे लगाओगे तो इट इज सी एक्स, और एफ ऑफ ए इंटू बी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए बी. सो ए बी पे सी एक्स लगाओगे तो इट इज ए बी सी एक्स. सो दोनों इक्वल है. सो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड. नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. इफ ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी, then we have a into e is equal to e into a is equal to a for all a belongs to g. So इसी तरह अगर हम कोई एफ ई ले ले जी डैश में से तो एफ ई इंटू एफ ई क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए ई, और ए ई फिर से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए. क्लियर. अगर हम एफ ऑफ ई इंटू एफ ऑफ ए ले ले तो इट इज़ एफ ऑफ ई ए, और ई इंटू ए क्या आ जाएगा, फिर से एफ ऑफ ए. सो वी हैव एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ई इंटू एफ ऑफ ए विच इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ऑफ ए.
Next, this implies f of e is identity of g dash. Next is existence of inverse. Let a inverse be inverse of a in g. सो अगर आपके पास ए इन्वर्स है जी में ए का, तो आपके पास ए इन्वर्स एफ ऑफ ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा जी डैश में, सच दैट एफ ऑफ ए इन्वर्स इंटू एफ ऑफ ए इज एफ ऑफ ए इन्वर्स इंटू ए विच इज अगेन ई. एफ ऑफ ई तो आपका एग्जिस्ट कर ही रहा था जी डैश में, सो विच इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इन्वर्स. सो देयरफॉर एफ ऑफ ए इन्वर्स इज इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ ए. सो ऑल द फोर axiom satisfied for f of set of all permutations on group G. So therefore G dash is a group. So let us now define a mapping from G to G dash. अब हमने mapping define करनी है G to G dash such that phi of A is equal to f of A for all A belongs to G. सबसे पहले we will prove that f phi is 1 1. So let us phi of A is equal to phi of B for all AB belongs to G. So what is phi of A? It is f of A. What is phi of B? F of B. So which is again equal to A equal to B because F is also 1 1. ठीक है, सो एफ बी क्या है आपके पास 1 1 है, therefore A is equal to V. Clear? So phi is on to. Phi is onto. Phi is onto means for each f of A belongs to G dash there always exists A. क्योंकि अगर A नहीं होगा तो आप f of A लिख ही नहीं पाओगे. So for all f A belongs to D dash there always exists A belongs to G such that phi of A is equal to f of A. Therefore phi is onto. So it is by definition phi is onto. Next is phi is homomorphic. सो होमोमॉर्फिक के लिए भी वट इज फाई ए बी? इट इज एफ ऑफ ए बी. एफ ऑफ ए बी को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी. ये हमने किया था इसी थ्योरम में. सो एफ ऑफ ए किसके इक्वल है? फाई ऑफ ए. एफ ऑफ बी किसके इक्वल है? फाई ऑफ बी के. सो फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी. सो देयरफॉर फाई इज homomorphism. So G is isomorphic to some permutation group G dash. So this completes the very important theorem, that is Cayley theorem of the chapter. So students, thank you for watching the video.